students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is operating system. In this chapter, we will learn functions of an operating system, different versions of Microsoft Windows, know your desktop, components of the desktop, icons in Windows 7, minimize and restore windows, changing the size of a window, closing window, shortcuts, selecting files and folders, creating new folder, deleting files and folders, shutting down और logging off a computer. तो कंप्यूटर में कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, आपकी जो विंडोज होती है उसमें एडिटिंग कैसे होती है, रीस्टोर कैसे करते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और फाइनली कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं, आज हम वो देखेंगे. Windows 7 is a popular operating system. It is developed by Microsoft Corporation for use on personal computers, desktop and laptops. Windows 7 is a graphical user interface GUI based operating system. It uses pictures, icons, buttons, etc. for performing various operations. Creating, renaming, copying and deleting files can be done just by using a mouse. तो आपका जो Windows 7 है, it is one of the most popular कंप्यूटिंग या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बाद बहुत सारे आपके अलग अलग विंडोज आए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करे जाने वाला है. आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम ये फॉलो करता है, जिसमें आपके ऑपरेशंस को करने के लिए आइकन्स, बटन्स, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है. नो इट. Every computer needs an operating system which lets you operate your computer. तो हर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी होता है जो आपके कंप्यूटर के फंक्शनिंग ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. Functions of an operating system. Some of the functions that the Windows operating system allows us to do are access different applications, programs on our computers, example word processing, games, spreadsheets, calculators, etc. Load new programs onto the computer, manage hardware such as printers, scanners, mic, digital cameras, etc. Manage files stored on our computer, change computer settings such as color schemes, screensavers and the resolution of our monitor. तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका जो एक डेस्कटॉप होता है उसमें आपके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपका वर्ड हो गया, पेंटिंग हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सेस करने के लिए अलाउ करती है. इसके अलावा आपको गेम्स खेलने हैं, वीडियोस देखनी है, वीडियोस एडिट करनी है, डॉक्यूमेंट टाइप करना है, वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं. और इसके अलावा हार्डवेयर में अगर आपको कोई भी चीज़ें डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, सिस्टम में कोई चीज़ ऐड करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं. कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, स्कैनर्स की मदद से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, इसमें माइक होता है. फिर आपके अलग अलग फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में आप मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, विच इज़ मेकिंग योर लाइफ ईजियर, इज बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. Different versions of Microsoft Windows. There are several versions of Microsoft Windows. You may have heard of Windows XP, Windows Vista and Windows 7. You can easily tell the version you have on your computer by number 1, find the My Computer icon on the desktop. Second, right mouse click on this icon and select Properties from the shortcut menu. The System Properties dialog box will appear. This shows the version of Windows you are currently operating in. तो आपके Microsoft Windows के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा Microsoft XP, Microsoft Vista, Microsoft Windows 7. आपके कंप्यूटर में कोई भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है. इसको अगर आपको जानना है तो बहुत ईजी तरीका है, आपके जो डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर का आइकन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट माउस क्लिक करना है, आपकी जो शॉर्टकट प्रॉपर्टीज का मेन्यू आता है वो आ जाएगा. उस मेन्यू में से आपको प्रॉपर्टीज पे सिलेक्ट करना है. प्रॉपर्टीज पे सिलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप करंटली आपका कंप्यूटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है. Know your desktop. When you start your Windows, the first screen you will see is called desktop. तो आप जब किसी भी टाइप का कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ भी ऑन करते हैं तो आपके विंडोज़ के बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वो विंडोज़ होती है, डेस्कटॉप होता है. Components of the desktop. Let us learn about the different components of the desktop. The taskbar.
The taskbar is the long horizontal bar at the bottom of your screen. Unlike the desktop, which can get obscured by open windows, the taskbar is almost always visible. It has three main sections. Number one, the start button. This button opens the start menu. Second, the middle section tells us about the programs and files opened currently and allows us to quickly switch between them. Number three, the notification area, which includes a clock and icons, small pictures that tells us the status of certain programs and computer settings. तो आपका जो टास्क बार होता है वो आपके कंप्यूटर में एकदम बॉटम साइड पे डेस्कटॉप के एक लंबा सा हॉरिजॉन्टल आपका एक बार होता है जिसमें आप जो भी प्रोग्राम्स ओपन करते हैं वो इसमें आते हैं. इसके अलावा इसके तीन मेन सेक्शंस होते हैं. सबसे पहला इसमें एक स्टार्ट बटन होता है जिसमें आपके स्टार्ट मेन्यू के सारे ऑप्शंस होते हैं. उसके बाद आपका जो भी प्रोग्राम, फाइल, आपने जितनी भी चीज़ें ओपन कर रखी हैं करंटली वो सारी आपको टास्क बार में दिखाई देती हैं. थर्डली, इसी के एकदम राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन सेंटर होता है. आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी मैसेज नया आता है, आपके वाईफाई का जितना भी सेटिंग्स होता है, कुछ सेटिंग्स आपकी यहाँ पे अवेलेबल होती है अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन सेंटर. The start button. The start button is located at the bottom of the screen on the left hand side of the taskbar and gives you access to the programs available on your computer. When you click on the start button, you will see a menu. Clicking on any program will open its window on your screen. Some of the items found in the start menu are documents. This links you to your documents. Pictures. This links to your pictures. Music, this links you to a folder for storing music. Computer, clicking this link will show you the drives connected to the computer. Control panel allows you to make changes to the current settings on the computer. Search programs and files allows you to search for files, folders, printers, software applications, etc. by entering such criteria. Help and support gives you access to a help facility where you can find out how to do certain things on your computer. Log off allows you to log off as a user without turning off the computer. This would allow someone else to log on to your computer. तो सबसे पहले आपका स्टार्ट बटन आता है जो टास्क बार में सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे होता है. इसमें आपके अलग अलग स्टार्ट मेन्यू होते हैं. स्टार्ट मेन्यू के अलावा आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद अ मल्टीपल सेट ऑफ एप्स, वो सारी चीज़ें आपको स्टार्ट मेन्यू में दिख सकती हैं. स्टार्ट मेन्यू में आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आता है. आपके कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं. फिर आपका पिक्चर्स आता है. ये लिंक पे क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे जितनी पिक्चर्स होंगी आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं. देन कम्स योर म्यूजिक. जितनी भी म्यूजिक सिस्टम्स होंगे, म्यूजिक आपकी स्टोर्ड फाइल्स होती हैं म्यूजिक की, वो आपके तक पहुंच जाएंगी. देन कम्स योर कंप्यूटर. कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर से जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, कोई हार्ड डिस्क हो गई, जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी वो आपको कंप्यूटर में दिखाई देंगी. कंट्रोल पैनल जो होता है आपकी जो करंट सेटिंग्स होती है किसी भी चीज़ की, आपकी ब्राइटनेस की सेटिंग्स हो गई, वॉलपेपर हो गया या कोई भी सेटिंग हो गई, वो आपको कंट्रोल पैनल से एक्सेस कर सकते हैं. देन कम्स योर सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स. आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको अगर आपको सर्च करना है तो वो भी आप स्टार्ट बटन से कर सकते हैं. हेल्प एंड सपोर्ट. हेल्प एंड सपोर्ट में आपको कोई चीज़ करनी नहीं आ रही है और आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो इस बटन से जो आपको स्टार्ट बटन में ही मिलेगा आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं. देन लास्टली कम्स योर लॉग ऑफ. लॉग ऑफ से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर बिना शट डाउन हुए आपको उस प्रोग्राम से कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल देता है ताकि नेक्स्ट बंदा अगर कोई आए तो वो आपकी कंप्यूटर को एक्सेस कर सके. The notification area. The notification area on the far right side of the taskbar includes a clock and a group of icons. It looks like the picture given below. These icons communicate the status of something on your computer or provide access to certain things. The set of icons you see depends on which programs or services you have installed and how your computer manufacturer has set up your computer. When you move your pointer to a particular icon, you will see that icon's name or the status of settings in that icon. For example, pointing to the volume icon shows the current volume level of your computer. फिर आपका आ जाता है नोटिफिकेशन एरिया जो टास्क बार के बिल्कुल फार राइट साइड में होता है. इसमें आपके नोटिफिकेशन सेंटर होता है. अलॉन्ग विद इट
ग्रुप ऑफ आइकन्स होता है। इसमें आपके जितने भी छोटे छोटे आइकन्स होते हैं उस पर अगर आप क्लिक करेंगे या अपने पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर आइकन की डिटेल्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल्यूम आइकन पे जाएंगे तो वॉल्यूम आइकन पे क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर की कितनी वॉल्यूम है करंटली वो आपको दिखने लग जाएगी। Icons in Windows 7. On your desktop, you will find a few pictures. These are called icons. To access the program, an icon represents it must be opened. To open an icon, you must point to it with your mouse and then double click on it using the left mouse button. फिर आपके Windows 7 पे कुछ icons होते हैं, ये छोटी छोटी pictures होती हैं जिसको open करते ही आपको अलग अलग files मिल जाती हैं। किसी भी आइकन को आपको ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने माउस के पॉइंटर को वहां पर लेकर जाना है, डबल क्लिक करना है ताकि आपका वो आइकन ओपन हो जाए और आपकी डिटेल्स आपको मिल जाए। My Documents. My Documents is the default storage folder for the files that you create. When you save or open a file, Microsoft Windows initially opens the My Documents dialog box. At this time, you can navigate to where you want to save your file. My Computer displays information about your computer, such as the contents of your computer, drives, and which printers you have installed. It also allows you to find, view, and organize your files. The Recycle bin, this is where you place files you no longer need. Any file you delete will be placed first in the Recycle bin. You can restore the deleted file from Recycle bin. Internet Explorer. With Internet Explorer and Internet connection, you can search for and view information on the World Wide Web. You can search the internet for people, businesses, and information about subjects that interest you. Download music, copy graphics, stay in touch with or meet new friends and a host of other activities. तो आपका जो आइकन्स होते हैं उसमें आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप ओपन करेंगे आपने जो भी फाइल क्रिएट करी हैं, जो भी फाइल्स आपकी सेव्ड हैं वो सारी की सारी आपको माई डॉक्यूमेंट्स में दिख जाएंगी। देन कम्स योर माई कंप्यूटर के फोल्डर को ओपन करते ही आपके कंप्यूटर में जितने भी कंटेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर स्टोर्ड फाइल्स, वो सारी आपको माई कंप्यूटर वाले सेक्शन में दिख जाएगी। देन कम्स योर रिसाइकल बिन। कोई भी चीज़ जब आपको नहीं चाहिए होती है आप उसको डिलीट कर देते हैं तो सबसे पहले वो डिलीट होते ही रिसाइकल बिन में जाती है और टेम्पररी बेसिस पे डिलीट हो जाती है। रिसाइकल बिन में अगर आपका कोई आइटम रखा हुआ है तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर देंगे तो फिर उस आइटम को आप दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते। देन कम्स योर इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप इंटरनेट का अगर कनेक्टिविटी है तो आप ऑनलाइन जाके अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी को ईमेल लिखना है, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। Minimize and restore windows. When a window is active, its taskbar button is highlighted. Clicking its taskbar button minimizes the window. That means that the window disappears from the desktop. Minimizing a window doesn't close it or delete its contents. Rather, it temporarily removes it from the desktop. You can again work on it by clicking on its icon on the taskbar. In the picture, calculator is minimized but not closed. You can say it's still running because it has a button on the taskbar. You can also minimize a window by clicking the minimize button in the upper right corner of the window. तो आपका जो भी मिनिमाइज करना होता है विंडो को या रीस्टोर करना होता है तो आपका जो भी आइकन आपने ओपन कर रखा है उसको वापस अगर उस पर आप क्लिक करेंगे हाईलाइटेड वाले वर्जन पे तो आपका जो भी विंडो ओपन हो रखा है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो आइटम है वो डिलीट हो चुका है या फिर आपका उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। टेम्पोरेरीली वो आपके डेस्कटॉप से डिसअपियर हो जाएगा और टास्क बार में स्टिल आपको वो दिखाई देगा। वापस से आपको अगर रिस्टोर करना है तो आपको टास्क बार पे उसी प्रोग्राम या विंडो की आइकन पे क्लिक करना है, वापस से वो रिस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका विंडोज के ऊपर ही 3 आपके बटन्स होते हैं उसमें जो मिनिमाइज वाला बटन होता है उस पर भी क्लिक करके आप अपने विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। Changing the size of a window. Number 1, to make a window fill the entire screen, click its maximize button or double click the Windows title bar. Second, to return a maximized window to its previous size, click its restore button. This appears in place of the maximize button or double click the Windows title bar.
Number 3, to resize a window, make it smaller or bigger. Point to any of the window's borders or corners. When the mouse pointer changes to a two-headed arrow, see picture below. Drag the border or corner to shrink or enlarge the window. A window that is maximized cannot be resized. You must restore it to its previous size first. तो आपको अगर किसी भी विंडो का साइज चेंज करना है तो सबसे, अगर आप चाहते हैं कि आपका विंडो पूरे के पूरे स्क्रीन पे बड़ा हो जाए, तो सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना है, या फिर आपको जो विंडो का टाइटल बार है उसी पे डबल क्लिक कर लेना है, तो आपका वो पूरी स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा. आफ्टर दैट अगर आपको मैक्सिमाइज विंडो को प्रीवियस साइज पे ही लेकर जाना है तो आपको रीस्टोर बटन पे क्लिक करना है. रीस्टोर बटन पे क्लिक करते ही जो आपका जब मैक्सिमाइज बटन होता है उसकी जगह पे आपको रीस्टोर बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका जो पीछे वाला साइज है उस पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. उसके बाद अगर आपको अपना विंडो को रीसाइज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको विंडो के जो बॉर्डर्स या कॉर्नर्स होते हैं उस पर आपको क्लिक करना है. आपका जो माउस पॉइंटर है वो टू हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे ही टू हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है, जितना भी आपको साइज को बनाना है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा. आफ्टर दैट आपका जो भी मैक्सिमाइज्ड विंडो है वो रीसाइज नहीं हो सकता है जब तक आप उसको उसके प्रीवियस साइज पर नहीं लेकर आएंगे. Know it. Although most windows can be maximized and resized, there are some windows that are fixed in size such as dialog boxes. तो आपकी most of the windows ऐसी होती हैं जिसको आप resize कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपकी ऐसी भी होती हैं जिनका साइज फिक्स होता है, जैसे कि जो आपके dialog box अपीयर होते हैं उनको आप resize नहीं कर सकते हैं. Closing a window. Closing a window removes it from the desktop and taskbar. If you're done with a program or document and don't need to return to it, you may close it. To close a window, click its close button. तो अब आपको जो भी विंडो आपने ओपन कर रखी है, आपका काम खत्म हो चुका है, आपको उसका एक्सेस अब नहीं चाहिए, तो सिंपली आपके जो विंडो के 3 बटन्स होते हैं उसमें एक क्लोज बटन होता है, आप उस पर क्लिक करिए तो आपका जो भी विंडो आपने ओपन कर रखा है वो क्लोज हो जाएगा. Know it. If you close a document without saving any changes you made, a message appears that gives you the option to save your changes. तो अगर आप क्लोज कर रहे हैं विंडो को कोई भी चेंजेस करने के बाद और आपने उसे सेव नहीं करा है, तो क्लोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो शट होने से पहले वो आपको एक मैसेज दिखाएगा कि अगर आपको सेव करना है तो आप चेंजेस को सेव करने के बाद उसे क्लोज कर सकते हैं. Shortcuts. On your desktop, there are many icons such as the recycle bin and my computer. Double-clicking on these icons opens the program or folder. You can create your own icons on the desktop to enable faster access of programs, folders, documents, printers, etc. These are called shortcuts. These shortcuts are then accessed the same way as other icons by double-clicking on them. You can tell if an icon is a shortcut or not by its appearance. If it has a little black arrow on the icon, then it is a shortcut. This is important to know because if you delete one of these shortcuts, you will not hurt the original folder, document or the program, whereas deleting an icon which is not a shortcut is risky as you may not be able to get it back. तो आपका जो भी आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, किसी भी आपके डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट हो सकता है, किसी भी फाइल का शॉर्टकट हो सकता है, इन दोनों का अपीयरेंस भी चेंज होता है और इसके अपीयरेंस का जो डिफरेंस होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी शॉर्टकट को डिलीट करते हैं तो उसका ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होता है, ना ही चेंज होता है. बट अगर बाय चांस आपने ओरिजिनल आइकन को डिलीट कर दिया तो आपका जो पूरा का पूरा फोल्डर है वो डिलीट हो सकता है. तो शॉर्टकट्स आपके डॉक्यूमेंट्स के हो सकते हैं, फाइल्स के हो सकते हैं, किसी भी चीज का शॉर्टकट आपका हो सकता है. Creating shortcuts using Start menu. Step 1. Click on the Start button. Step 2. Move your mouse over either programs to create a shortcut to a program or documents to create a shortcut to a document. Step 3. Right click on the file or program name and select the Send to option. Step 4. Select Desktop. Create shortcut. Step 5. The shortcut will be created on your desktop.
अगर आपको किसी भी फाइल का या डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो माउस है प्रोग्राम का, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो प्रोग्राम के पास लेकर जाइए, डॉक्यूमेंट का चाहिए डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकर जाइए, फाइल का चाहिए तो फाइल के ऊपर लेकर जाइए। उसके बाद आपको आपके फाइल या प्रोग्राम जिसका भी शॉर्टकट चाहिए उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सेंड टू ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंड टू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप। ये करते ही आपका जो भी प्रोग्राम या फाइल उसको आपने चूज करा है उसका एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाएगा। डिलीटिंग अ शॉर्टकट। To delete a shortcut from the desktop, click and drag the icon to the recycle bin. Release the mouse. This does not delete the file, folder or program the shortcut represents. It only removes the shortcut from the desktop. You can also click on the shortcut icon once with the mouse to select it, then use the delete key on the keyboard. Using this method, you will be asked to confirm the deletion. Click on the yes button. अब अगर आपको किसी भी शॉर्टकट को डिलीट करना है, आपके माउस पे लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करके रिसाइकिल बिन की तरफ लेके जाइए तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसको डिलीट करने से आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं होता है, सिर्फ शॉर्टकट डिलीट होगा। इसके अलावा आप उस पर एक बार क्लिक करने के बाद, एक बार लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो आपके कीबोर्ड पे डिलीट बटन है उस पर प्रेस करिए। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आपको उस पर येस पे क्लिक कर देना है, आपका शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा। Selecting files and folders. Before you move, copy or delete files and folders, they must be selected so that Windows and the computer knows which files and folders to work with. In Windows Explorer, you can select multiple files and folders by combining the use of the keyboard with the mouse. Single selection. Point your mouse over the item you want to select and click once. The item will be highlighted. Scattered selection. Hold down the control key and then click on each item you want to select. Block selection, click on the first item you want to select. Hold down the shift key and then click the last item to be included in the selection. Selecting all. To select everything in a folder, use the edit menu, click on select all options or use the keyboard shortcut Ctrl+A. तो आपका जो फाइल और फोल्डर होता है उसको मूव करने से पहले, कॉपी करने से पहले, डिलीट करने से पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। तो उसके आपके मल्टीपल तरीके होते हैं। सबसे पहले सिंगल सिलेक्शन होता है, जो भी आपको चीज़ डिलीट करनी है, मूव करना है, कॉपी या पेस्ट करना है, आपको उस पर जाना है और एक बार लेफ्ट क्लिक करना है तो वो हाईलाइट हो जाता है, जो भी आपका आइकन है वो हाईलाइट हो जाएगा। देन कम्स योर स्कैटर्ड सिलेक्शन। स्कैटर्ड सिलेक्शन में आपको कंट्रोल की पे प्रेस करना है और कंट्रोल की पे प्रेस करने के बाद आपको उस हर एक आइकन पे जाना है जो आपको सिलेक्ट करना है, तो ये आपका स्कैटर्ड सिलेक्शन होता है। देन कम्स योर ब्लॉक सिलेक्शन। इसमें आपको सबसे पहला वाला जो आइकन है उसके कॉर्नर पे जाके सिलेक्शन करनी है और उसके बाद आपको शिफ्ट की को प्रेस करके जो लास्ट वाला आपका आइकन है वो दबा देना है, तो ये आपका ब्लॉक सिलेक्शन हो जाएगा। देन कम्स योर सिलेक्टिंग ऑल। सिलेक्टिंग ऑल को करने के लिए जो भी आपका एडिट मेन्यू है आपके फोल्डर का, उसमें आपको एवरीथिंग पे सिलेक्ट कर देना है या फिर आप Ctrl+A के कॉम्बिनेशन वाली कीज भी प्रेस करेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा फोल्डर जो है वो कॉपी हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। Creating new folders. All users have been given the ability to create folders in their personal drive. However, only the share administrators have access to create folders on the shared drive. It is important that you are in the correct drive and folder before you create a new one. When you create a new folder, it will be created within the active folder, the folder which is currently open. The name that you give to the folder created by you should be descriptive and not too long. It can include letters and numbers but should not include special characters such as full stops, exclamation marks, asterisks, back or forward slashes, etc. तो आपको अगर किस नया फोल्डर को क्लिक करना है या बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको ये नया फोल्डर चाहिए कहाँ पे, क्योंकि कोई भी विंडो अगर आपकी ओपन होगी वहाँ पर अगर आप एक नया फोल्डर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो फोल्डर वहाँ रहेगा। तो सबसे पहले आपको लोकेशन डिसाइड करनी है। लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपका जो भी फोल्डर है उसको आपको नेमिंग देनी है। डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आपके जो स्पेशल मार्क्स होते हैं जैसे आपका एस्ट्रिक्स हो गया, बैकवर्ड या फॉरवर्ड स्लैशेस हो गए, नंबर्स हो गए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके फोल्डर के नेम में नहीं होनी चाहिए।
Steps to create a folder. Step 1. Locate and select the folder on the drive where you want to create a new folder. Step 2. Right click the mouse in the right pane. Step 3. Select a new from the shortcut menu, then click on folder. Step 4. Type in the folder name and press enter or click away from the surrounding rectangle. तो अगर आपको नया फोल्डर बनाना है, सबसे पहले तो आपको उस फोल्डर या फाइल पे जाना है, जिस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपको नया फोल्डर चाहिए. उसके बाद आपको राइट पेन पे जाके राइट क्लिक कर देना है. राइट क्लिक करने के बाद आपको जो शॉर्टकट मेन्यू आएगा उसमें आपको सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है. न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर पे क्लिक करना है. फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी नेमिंग देनी है आपके फोल्डर को या फाइल को, आप वो नेम टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो भी आपने फोल्डर का नाम दिया है जिस लोकेशन पे, वहां पे एक नया फोल्डर उस नाम से आ जाएगा. Know it. A file name can contain up to 255 characters but does not contain characters forward or backward, slashes, asterisk, question mark, ब्रैकेट्स या फिर हाइफन्स. तो आपका जो भी फाइल नेम होता है उसमें 255 कैरेक्टर्स तक आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपके सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैशेस, एस्ट्रिक्स, आपके ओपन एंडेड जो आपके क्लोज्ड ब्रैकेट वाले ब्रैकेट्स होते हैं या फिर इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Deleting files and folders. When you delete a folder, the folder and its entire contents, any files or subfolders will also be deleted. When you delete a file, the whole file and its contents are deleted. If you delete a file or folder from the C or D drives, your local hard drives, they will go into your recycle bin, which means you have a chance for recovering them. If you delete a file or folder from any other drive, including network drives, the A drive or thumb drives, they are permanently deleted. तो अगर आपका जो भी आपका फोल्डर है या फाइल है, अगर आप पूरी की पूरी मेन फाइल डिलीट कर देते हैं तो उसके अंदर की जो सब फाइल्स जो आपकी लोकेटेड होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं. लेकिन ये डिलीट होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्राइव सी या ड्राइव डी से डिलीट करा है जो आपकी लोकल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, तो आपका ये रिसाइकिल बिन पे जाती हैं. इसका मतलब है कि आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने उसको ए ड्राइव से या फिर नेटवर्क ड्राइव से डिलीट करा है कोई भी आपका फोल्डर या फाइल, तो वो परमानेंटली डिलीट होती है, उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते हैं. To delete a file or folder, right click the file or folder that you want to delete and then click delete. तो अगर आपको कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करना है तो उस पर सबसे पहले एक क्लिक करिए, राइट क्लिक पे प्रेस करिए, आपके पास एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट को प्रेस कर दीजिए, आपका जो भी फाइल या फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा. Shutting down or logging off a computer. You can shut down your computer or log off when you have finished using it. Before you can do either of these functions, any applications you have opened must be closed. This is done by either number 1, clicking on the file menu within the application and then selecting exit. Alt plus F4 is the keyboard shortcut for this function. Second, click on the close button located on the top right hand side of the application. Once you have closed all open applications, you can either log off your computer or shut down. Log off means that you log off as a user without turning the computer off. Someone else can then log on. Shutdown means that you log off as a user and the computer is turned off at the same time. If you are leaving work for the day and no one else will be using your computer, you will need to shut down your computer as this saves power. तो आपका जो भी कंप्यूटर है उसमें आप या तो लॉग ऑफ कर सकते हैं या फिर शट डाउन कर सकते हैं. शट डाउन का मतलब होता है आपका जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा, दोबारा कोई यूज़र अगर आएगा तो उसको दोबारा से उसको खोलना पड़ेगा. लॉग ऑफ में ऐसा नहीं होता है. लॉग ऑफ अगर आप करते हैं तो आपका सिर्फ यूज़र आईडी से आप लॉग ऑफ करते हैं, दूसरा बंदा आके उसको दोबारा से यूज़ कर सकता है, आपका कंप्यूटर ऑन रहता है. बिफोर लॉगिंग ऑफ और शटिंग डाउन योर कंप्यूटर यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग्स या विंडोज़ ओपन कर रखी हैं वो क्लोज हो. इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F4. इससे आपकी जितनी विंडोज़ होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं. इसे करने के 2 तरीके होते हैं. सबसे पहला, फाइल मेन्यू पे क्लिक करिए, उसमें आपका अलग अलग एप्लीकेशंस आ जाता है एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है एग्जिट या फिर आप ऑल्ट प्लस F4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी. दूसरा है आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है जो आपके हर विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है. दोनों ही तरीके से आप किसी विंडो को क्लोज कर सकते हैं.
जो आपका जैसे ही आपका एप्लीकेशंस वगैरह सब क्लोज हो जाएगा, आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक लॉग ऑफ करने का और एक शट डाउन करने का। लॉग ऑफ करेंगे तो आपके पास दूसरा यूजर भी उसको यूज कर पाएगा, और शट डाउन का मतलब होता है कि आपने सारी की सारी विंडोज भी क्लोज कर दी हैं, एप्लीकेशंस भी क्लोज कर दी हैं और कंप्यूटर भी टर्न ऑफ हो चुका है। इसका शट डाउन का फायदा ये होता है इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती है, लॉग ऑफ में आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमेशा ज्यादा रहती है। To log off from your computer, step 1, click on the start button. Step 2, select log off, click the arrow next to shut down. Step 3, if you have any open programs, then you will be asked to close them down. You will lose any unsaved information if you directly log out. तो अगर आपको कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक लॉग ऑफ ऑप्शन आएगा, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन, तो आपके पास एक लॉग ऑफ ऑप्शन आएगा। आपको लॉग ऑफ करने से पहले सारे के सारे प्रोग्राम्स को शट डाउन करने के लिए भी एक रिमाइंडर आएगा कि सारे के सारे एप्लीकेशंस या विंडोज को आप क्लोज कर दीजिए, और आपका जितना भी अनसेव्ड इंफॉर्मेशन है वो ऐसे करने से लूज हो सकता है। To shut down your computer, step 1, click on the start button. Step 2, select shut down. Step 3, you will then see the shut down Windows dialog box. Step 4, if you have any open programs, then you will be asked to close them down. You will lose any unsaved information if you directly shut down your computer. फिर अगर आपको completely shut down करना है, सबसे पहले आपको start button पे जाना है। start button पे जाने के बाद आपके पास एक shut down का ऑप्शन आएगा, आपको shut down पे select कर लेना है। आफ्टर दैट आपके पास एक शट डाउन विंडो का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वो जैसे ही अपीयर होगा आपको बोला जाएगा कि आपकी सारी की सारी विंडोज़ को आप सबसे पहले अगर ओपन है तो उसे क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप शट डाउन करिए। और अगर आप डायरेक्टली लॉग आउट कर देते हैं बिना इन विंडोज़ को सेव करके शट डाउन करे हुए, तो फिर आपकी जो अनसेव्ड इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो सकती है। To restart your computer, the restart command is occasionally used because number 1, you do not have access to the network drives. Second, the service desk has asked you to restart your computer. Restarting your computer means that the computer logs you off the system, turns itself off and turns itself back on again so you can relog again. Number 1, click on the start button. Second, select shut down. Number 3, you will then see the shut down Windows dialog box. Number 4, select restart from the drop down menu. Number 5, your computer will log you off, turn itself off and turn itself on again so you can relog again. तो आपका फिर आता है रीस्टार्ट का ऑप्शन। ये आप तब करते हैं जब आपको कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना होता है, यूज़ करते रहना होता है, या फिर आपको कोई नेटवर्क प्रोवाइडर बोलता है कि उसको एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के कुछ आपके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको शट डाउन पे सिलेक्शन करनी है। शट डाउन पे सिलेक्ट करते ही एक शट डाउन विंडो का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पे अपीयर होगा आपको रीस्टार्ट पे सिलेक्ट करना है। रीस्टार्ट पे जब आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपका जो कंप्यूटर है सबसे पहले वो लॉग ऑफ होगा, अपने आप शट डाउन होगा और थोड़ी देर के बाद अपने आप ही टर्न ऑन भी हो जाएगा। To revise, Windows 7 provides you with a graphical user interface GUI. It uses pictures, icons, buttons, etc. for performing various operations. The taskbar is the long horizontal bar at the bottom of your screen. Minimizing a window doesn't close it or deletes its contents. It rather temporarily moves it from the desktop. Shortcuts are icons on the desktop. They are used to enable faster access of programs, folders, documents, printers, etc. Log off means that you log off as a user without turning the computer off. Shut down means turning the computer off finally. तो Windows 7 जो है आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपके अलग अलग फीचर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल Windows 7 जिसमें आपके अलग अलग टास्क बार होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार जिसमें आपका स्टार्ट बटन होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स जो आपने ओपन किए होते हैं वो होता है, राइट हैंड साइड पर आपका नोटिफिकेशन सेंटर होता है, ग्रुप ऑफ आइकन्स होते हैं। इसके अलावा आपका मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है, विंडो को रीसाइज कैसे करा जाता है, शट डाउन कैसे करते हैं, लॉग ऑफ कैसे करते हैं और वापस से रीस्टार्ट कैसे करा जाता है कंप्यूटर को, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है।